बताता हूँ कि वो 2000 साल पहले क्यों आया, why that he came to this और world, वो क्यों ये संसार में आया, why that he had to be born through a virgin woman, और वो एक कुमारी के पेट से क्यों जन्म लेना पड़ा why उसको, that he came to this dark and broken world. और वो इस टूटा हुआ संसार में, अंधकार के संसार में क्यों आया। Let me tell you, my dear beloved friends, मुझे बताने दो मेरे प्यारे दोस्तों, according to the Bible, और बाइबल के अनुसार the Bible says all have sinned and Bible fallen बताता है short of the glory of कि God. हर सब लोग पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से गिर चुके हैं, There is nobody who stands here that is without sin. और यहाँ पर कोई भी बिना पाप से खड़ा नहीं है। Maybe you could say, I've never committed sin in my और हो life. सकता है कि आप बोल सकते हैं कि मैंने कभी जिंदगी में पाप नहीं किया, But let me tell you this, that you are not a sinner by sinning, but you are born a sinner. लेकिन मुझे आपको बताने दो कि आप पाप करके कुछ करके आप पापी नहीं है, लेकिन आप पाप में जन्मा हुआ है। You were born in sin. आप पाप में जन्म लिया है, Because there was a man by the name of Adam. क्योंकि He was एक the इंसान first था। man that God created. और जो आदम का नाम का एक व्यक्ति था जिनको परमेश्वर ने पहली बार सृष्टि किया था, And he made one mistake. और उन्होंने एक गलत किया, He did one mistake. और उन्होंने एक गलत किया, He committed sin against God. और वो परमेश्वर के विरोध में पाप किया। And when he committed sin against और God, जब वो परमेश्वर के विरोध में पाप किया, everyone that was born through him fell into sin. और जितना भी लोग उसके द्वारा जन्म लिया सब पाप में डूबे। You saw a lot of people try to reach God in their own ways. और हम लोग देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से परमेश्वर को ढूंढना कोशिश करते You know, हैं। there are many people that are different religions in the world trying to reach God in the different ways. और ये संसार में बहुत सारा धर्म है जिसके द्वारा वो लोग परमेश्वर को पहुंचना चाहते हैं। I am not here preaching about any religion tonight. और मैं आज यहाँ कोई धर्म के बारे में प्रचार करने नहीं आया हूँ, I am not here to lift up one religion or to put down one religion. और मैं यहाँ पर एक धर्म को उछालने के लिए और दूसरा धर्म को गिराने के लिए नहीं आया No, हूँ। I am here to preach about Jesus Christ, the one who died for our sins. लेकिन मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताने आया हूँ जिन्होंने हमारे पाप के लिए मरा। According to the Bible, और बाइबल के अनुसार in Matthew chapter 1, और मत्ती एक अध्याय में I'm going to read this verse to you. Listen to me, my dear beloved friends. मैं ये पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। आप प्यारे दोस्तों, आप लोग सुने। If you've never heard this gospel before tonight, I want you to hear this gospel. और यदि आपने ये सुसमाचार पहले कभी नहीं सुना तो आज मैं चाहता हूँ कि आप सुने। The Bible says this, और बाइबल ऐसा बताते हैं, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus. और वो एक बेटा लाएगा और उसका नाम तुम यीशु रखोगे, For he will save his people from their sins. क्योंकि वो अपने लोगों को पाप से छुटकारा देगा। I do not know how many of you have tried fighting sin. और मैं नहीं जानता कि आप लोग कितना है जो पाप से जूझ रहे हैं। How many of you are trying maybe to get out of addictions in your और life? आप कितना लोग नशा से छुटकारा पाने के लिए How कोशिश many कर of you रहे are हैं। trying to have peace in your और life? बहुत सारे लोग कितना है जो शांति पाना चाह रहे There हैं। are a lot of people now full of condemnation in their और hearts. ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को दोषी ठहराते हुए There हैं। are a lot of people who cannot sleep in the night because they are full of condemnation in their और ऐसा life. बहुत सारे व्यक्ति हैं जो रात को सोने नहीं सकते हैं क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारा दोष है। But let me tell you one good news. लेकिन मैं आपको ये सुसमाचार बताना चाहता हूँ। God came in the person of Jesus Christ 2000 years ago. और परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में 2000 साल पहले आया, He came as a man from heaven. और वो इंसान बनकर स्वर्ग से आया। And the purpose of his coming is that he will forgive your sins. और उसका आने का उद्देश्य यह था कि वो आपके पाप को क्षमा करेगा। Nobody can forgive your sins except Jesus. और आपके पाप को कोई भी क्षमा नहीं कर सकता है, केवल यीशु मसीह कर सकता है। Nobody can, no priest can forgive your sins. और कोई भी पंडित आपके पाप को क्षमा नहीं दे There's सकता। only one name that can forgive your sins, केवल and एक ही his नाम है। name is Jesus. केवल एक ही नाम है जो आपके पाप को क्षमा कर सकता है और वो नाम है यीशु। So my dear beloved friends, और इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, I do not know how deep or how you have immersed your life in sin. और मैं नहीं जानता कि आप कितना पाप में डूबे हुए हैं। But let me tell you this, लेकिन मैं आपको बताना चाहता that हूँ in Jesus there is forgiveness of कि sin. यीशु मसीह में पाप का क्षमा है। In Jesus
यीशु में there is cleansing of your sins. आपके पाप से उद्धार है। There is cleansing for your sins in Jesus. और यीशु मसीह में आपके पाप से आपको सफाई कर सकता है। Tonight, my dear friends, आज के रात मेरे